جی حکیم صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حکیم صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ایک منٹ ذرا صبر کر لے، حال بھی پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ حکیم صاحب کیا بنا رہے ہیں؟ یہ میں بنا رہا ہوں کشتا۔ اچھا، ہاں، کشتا ستاناسی۔ کشتہ ہے ستیاناسی؟ ہاں جی، یہ کون سا کشتہ ہے حکیم صاحب؟ یہ سائی نسخہ۔ شاہی ہاں جی شاہی۔ بڑے بڑے بادشاہ نواب یہ نسخہ کھاتے تھے۔ آپ کی سین اور شین میں تھوڑا فرق ہے۔ بس جی یہ بولی ایسی ہے۔ اچھا، بولی ایسی ہے؟ ہاں جی یعنی آپ کے پاس یہ شاہی نسخہ ہے؟ ہاں جی، سائی نسخہ۔ شاہی میرا بھی سوچو کوئی حکیم صاحب کدوں دا بیٹھا، تسی رگڑے تے رگڑا دئی جان ڈے۔ تیرا سوچ لیا؟ کی سوچ لیا؟ صرف 2 دن بس، اچھا اس کے بعد انشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ 2 مہینے تو علاج نہیں ہو۔ جمال صاحب السلام علیکم۔ جی السلام۔ آج ہی میں 2 مہینے ہو گیا اس بندے کو دوائی لیندیا پیا، اچھا، ذرا فرق نہیں پین ڈیا، پیسے لئی جان ڈیا، فرق نہیں پین ڈیا۔ اگر فرق ہی پڑ گیا تو دوبارہ یہاں تو آلو لینے آوے گا۔ ٹھیک ہے جی، تیرا نام ہے، پتہ کنی دوروں سن کے آیا؟ کتنی دور سے سن کے آیا؟ اتنی دور ہم نے لکھوایا ہی نہیں۔ کر لو گل۔ بات سن لو، کیا بات ہے حکیم صاحب؟ حکیم صاحب ان کا علاج کریں، وہ تکلیف میں ہے۔ بس تھوڑے 2 دن کی تکلیف ہے جی۔ اچھا۔ تیسرے دن نہ تکلیف رہے گی اچھا، اور نہ یہ رہے گا۔ میرا مطلب ہے چلا جائے گا نا اپنے کام کاج پہ۔ پچھلے 2 مہینے تو یہی سنن ڈیا جی، بس اے دوا کھا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، اے خوراک کھا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہون ڈیا۔ عجیب جی درد ہے جی، اتھوں شروع ہوندی ہے جی درد تے ایتھے تک جاندی ہے جی، ایتھے تک۔ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آتی ہے۔ ہاں جی، جس دن یہاں آگی اس دن سمجھ بیڑا پار ہے۔ ہیلو، ادھر تے دل نہیں ہوندا جی بھلا؟ حکیم صاحب یہ کس طرح کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو کیوں مایوس کر رہے ہیں یار؟ جمال صاحب اگر ہم نے اس کو جلدی ٹھیک کر دیا تو یہ کمپنیاں دوائیوں کی ترقی کیسے کریں گی؟ دیکھیں اب یہی تو وجہ ہے کہ جو آپ لوگ اپنے پیشے کے ساتھ لائل نہیں ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں اب شفا نہیں رہی، آپ لوگوں کے ہاتھ میں شفا نہیں رہی۔ ایک دور تھا کہ یہ طبیب حضرات کینسر کا علاج بھی یہ طبیب حضرات کیا کرتے تھے، اور یہ طبیب لوگ کینسر کی سرجری بھی کرتے تھے۔ تو آپ جیسے لوگوں نے تو اس پیشے کا بیڑا غرق کر دیا۔ جمال صاحب ہم نے ترقی دی ہے لوگوں کو۔ جب میں اس علاقے میں آیا تھا تو کفن کی ایک دکان تھی۔ اچھا، اب انہوں نے اتنی ترقی کر لی، کفن بیچ کے کلاتھ ہاؤس بنا لیے۔ کہنے ہوئی تو جی بس وہ میں چلنا پھر جی، نہیں صرف 2 دن۔ کہہ دے 2 دن، یہ تو کفن دیا گلا کر لگ پیا۔ بجائے مینوں حوصلہ دے، تسلی دے بھی تیرا علاج ہو جائے گا، یہ کہہ رہے جی کفن دیا دکاناں ود گیا نے۔ اوہو تیرا علاج تو ہوئے گا، بالکل پکا ہوئے گا، نہ اس کے بعد بیماری بچے گی نہ آپ۔ جمال صاحب یقین کرو، اینی طبیعت خراب رہندی، آوازاری رہندی ہے بھی بھوک نہیں لگدی۔ اوہو بھوک نہیں لگتی تو روٹی مجھے دیا کر، گھر میں خراب ہی ہوگی پڑی۔ یعنی کہ اپنی روٹی تینوں دے جا کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا میں تیرا علاج کرنا، تینوں بھوک لگے کرے گی تو کھا۔ بھائی یہ کیوں جا کی میں تم؟ او میرا مطلب ہے جب تک تو ٹھیک نہیں ہوتا جب تک روٹیاں مجھے دے جایا کر، میں کھا لیا کروں گا، اس میں کوئی ٹینشن ہے بھلا؟ حکیم صاحب اگر آپ روٹی کھاتے ہوتے تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ کو تو باقاعدہ ایک اچھے فزیشین کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے۔ خود بیمار لگ رہے ہیں مجھے۔ جمال صاحب یہ میری حالت یہ سوچ کے ہے اچھا، کہ بھی علاقے میں قبریں کس طرح بڑھاؤں۔ جب میں اس علاقے میں آیا تھا تو صرف 1 قبر تھی، آج الحمدللہ 301 قبر ہے ہماری وجہ سے۔ میرا مطلب ہے بھئی قبرستان میں بھی رونقیں ہیں۔ کہڑی وجہ تو؟ بس وہ ہماری وجہ سے سمجھ لو یا ان 2 نمبر دوائیاں کی وجہ سے سمجھ لو یا جس وجہ سے بھی سمجھ لو، ہمیں تو جیسے دیتے ہیں ہم آگے دے دیتے، بس بندہ بچے نہ بچے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں جی کہ آپ یہ شعبہ حکمت سے کب سے وابستہ ہیں؟ یہ جنگ عظیم سے ہمارے دادا پر دادا سر دادا دھڑ دادا وہاں سے شروع کیا تھا سر۔ پہلی جنگ عظیم کی دوسری جنگ عظیم؟ وہ میرے خیال دوسری جنگ عظیم تھی۔ جی جی، ہاں جی وہاں سے شروع کرا تھا یہ۔ اچھا، ہاں جی۔ یعنی کہ آپ کا یہ خاندانی پروفیشن ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ کے دادا اور پردادا بھی حکیم ہی تھے؟ بالکل حکیم تھے جی۔ پھر تو آپ کے پاس بڑے نادر نسخے ہوں گے۔ نادر تو فوت ہو گیا جی پرسوں۔ اچھا، وہ میں نے اس کو غلط دوائی دے دی تھی، اس کا کام ہو گیا جی۔ تاڑی دوائی نہ مریا
अस्सलाम वालेकुम जी। सिर्फ 2 दिन, की 2 दिन? सिर्फ 2 दिन, उसके बाद ना बीमारी बचेगी ना तू। है की गल की जी ने? मेरा मतलब है ठीक हो जाएगा, काम पे चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे अब तक तमाम गुफ्तगू में ये कहीं से भी हकीम नज़र नहीं आ रहे। आप जमाल साहब, जी, जी। हम कोई आम हकीम नहीं है। जी, जी। यूनानी हकीम है, यूनानी। अच्छा, यूनानी हकीम है। नहीं, आपने हिकमत कहाँ से सीखी? आपके बड़ों ने, आप कह रहे हैं कि आप ख़ानदानी हकीम हैं, आपके बड़ों ने, आपके ख़ानदान ने ये हिकमत की तालीम कहाँ से हासिल की? यूनान से जी। आराम से जी। ओहो, मेरा मतलब है यूनानी हकीम है, यूनानी। अच्छा, इसका मतलब आप बहुत कदीम हकीम हैं। कदीम सफर से ही आए हैं जी। अच्छा 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 अच्छा। फिर दर्द होने लग पई है, कोई दे दे दवाई। वो थोड़ी थोड़ी दर्द बर्दाश्त भी करनी चाहिए। किन्नी की करा? 2 महीने तो बर्दाश्त करन दिया वा। सिर्फ 2 दिन, बस 2 दिन। और कोई नुस्खा भी दस, कोई दवाई दे। इनू रगड़ी ते रगड़ा दे ही जांदा है। इसके बारे में तू क्या जाने? हां, मुर्दा भी जिंदा हो जाए इसको खा के। इनू खा के हाँ। थोड़ी चखला। ले, ओ तू तो सही सलामत है। अच्छा। तू चखेगा तो मर जाएगा, ये तो मुर्दों वास्ते। यही तो नॉलेज नहीं है आप लोगों को। की नहीं? हिकमत का नॉलेज नहीं है। हेलो, ऐस मुंह में अंग्रेजी बोलने दिया जी। अंदाजा करें। अच्छा, तेरे मुंह अंग्रेजी जच दिया, तेरे मुंह आही ठीक है जी बोलने दे। आमा क्या करी है, ऐसी बोली जा। अब 1 दिन रहेगा बस। आए 1 दिन। फिर ठीक हो जाएगा। बदतमीजी कर रहा तू हकीम से। ना कर। तुझे पता है जब अल्लाह नाराज होवे तो हकीम के पास भेज दे। हाँ। और जब हकीम नाराज होवे तो फिर अल्लाह के पास भेज दे। ऐ तो गल ठीक है। मैं माफी चाहना, मैं तेरे पैरों में हाथ लाना जी। ये पैर है, इको जी ने जी। 1 दिन रहेगा बस। अच्छा जी। जलाल साहब ये बताएं, हाँ जी। आपको मसला क्या है? आपको किस तरह की बीमारी है? हम देखते हैं कि आपको किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए या हकीम के पास जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपका इलाज इनके पास हो। गल पता की है जी, आ वेख रहे हो पसीने आउण डे आ, एकदम दिल घबराण लग पैंदा है, पसीने आण लग पैंदे आ, फिर इत्थे कि दर्द उठदी है जी, कदी अगे जांदी है कदी पिछे जांदी है, फिर एवें इत्थे पूरे जिस्म दे विच दर्द फैल जांदा जी। ਉਹ समझ नहीं आउंदी जी की होण डिया। मैं बताता हूँ। हाँ जी। गर्मियों का मौसम है, मैं समझता हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है। हाँ जी। डिहाइड्रेशन, एक ही बुलाया जी। पसीना जब ज्यादा आ जाए हाँ तो जी। नमकियात जब बॉडी से खारिज होते हैं हाँ, तो बंदे के अंदर नकाहत, सुस्ती और कमजोरी पैदा हो जाती है हाँ। और उसको स्टोमिक इशू हो जाता है। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है, तो आप बिला वजह हकीम साहब के पास आए, आप ORS का इस्तेमाल करें। ठीक है, मुझे अब तक इनकी गुफ्तगू से और इनके अंदाज से ये नहीं लगता कि ये कोई बड़े हकीम है। तो मुझे तो ये अताई हकीम लग रहे हैं कि ये ना हो कि जिस तरह की बातें करेंगे आपके पास 2 दिन है और 2 दिन के बाद शायद आपको ये मिले ही ना। जलाल साहब, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वहां जाके अपना इलाज करवाएं, ये भाई मरवा देगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये आपका इलाज कर पाए। जमाल साहब जान तो मैं हुणे ही चला जावां, जी जी पर एक गल दी मैनूं समझ नहीं आउंदी जी, बताएं। कि जदों ये मैनूं कोई पुड़ी दे दिंदे ना कोई खाण वास्ते, ते जदों मैं खा ली ना, जी जी, उदों मैनूं सुकून मिल जांदा, आराम मिल जांदा, फिर नहीं दर्द दुर्द हुंदी। आपको पता है ये आपकी फकियों के अंदर ये जो अपनी हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, इसके अंदर स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। की कर दे जी? स्टीरॉइड का इस्तेमाल एलोपैथिक के अंदर एक ऐसी मेडिसिन है कि जब कोई मरीज मर रहा हो उसकी जान को बचाने के लिए या उसको इंतहाई खतरनाक किस्म की बीमारी लाहक हो जाए तो उसका इलाज पीछे स्टीरॉइड बचता है, तो वो दी जाती है। वो ये उससे आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आप ठीक हो जाएंगे, इस्तेमाल छोड़ देंगे तो आप पहले से भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसके बाद आपके जिस्म के ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं करती। ये ज्यादातर अपनी हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर, हर्बल दवाइयों के अंदर ये जो हकीम है, ये जो अताई हकीम है, ये स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी। जी, तो फिर मैं हस्पताल ही जाना जी, उत्थों इलाज करावांगा। किधर अस्पताल जा रहा, 2 महीने से मैं मेहनत कर रहा, दिन रहेगा एक, अब तो अस्पताल जाएगा। और मेहनत कर रहा, इलाज करा करन दिया, मेहनत करी जान दिया, केड़ी मेहनत करन दिया, राल ते कोई नहीं होण दिया मेरा, पर मैं चला वा। और बैठ कर आराम से। देखो जी जबरदस्ती है जी। 1 दिन और रहेगा, उसके बाद तू अस्पताल जा, तू जहाँ मर्जी जा, जापान जा, इंग्लैंड जा, जहाँ जा। नहीं जी नहीं, मैं हुण हस्पताल ही जाना जमाल साहब, उत्थे ही दवाई लांगा, मैनूं पता लग गया भी ये कोई जैली हकीम है, ते तुसीं एवें करो कि इन्हूं टकवाओ जी, क्योंकि
जमाल साहब बेचारा शरीफ आदमी है, वो अपने नॉलेज की बात कर रहा है, और जमाल साहब क्यों हमारी रोजी मरवावे, क्यों हमारे बच्चे भूखे मरवावे, एक दिन सारा रहेगा। नहीं, आपने अभी तक तमाम गुफ्तगू के अंदर कोई प्रोफेशनल गुफ्तगू नहीं की, आपने उसके इलाज की बात नहीं की, आपने उसको कोई परहेज नहीं बताया, आपने कोई टेस्ट नहीं बताए कि आप ये टेस्ट करवा के आए। यही वजह है कि ये हिकमत का शोबा पाकिस्तान के अंदर बहुत पीछे जा रहा है। एक टाइम था कि हिकमत का इलाज इतना यूजफुल था, इतना मुफीद इलाज समझा जाता था कि इससे कैंसर तक के इलाज होते थे, और हमारे खित्ते के जो हकीम लोग थे, हुक्मा लोग थे, वो बहुत मशहूर थे। अरब से जो हैं, अरब ममालिक से लोग उन दिनों सफ़र करके पाकिस्तान आते थे और यहाँ से हमारे तबीब हजरात से इलाज करवा के जाते थे, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नादर और शाही नुस्खे हमारे हुक्मा के पास थे, बड़े बड़े हकीम गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये इन जैसे अताई लोगों ने इस शोबे को बदनाम भी किया हुआ है, और यही वजह है कि डॉक्टरी ने जगह ले ली। आपको मैं ये बता दूं कि चाइना के अंदर अब भी 2 तरीके इलाज हैं। चाइना के अंदर अब भी तकरीबन 70% लोग जो है वो हर्बल प्रोडक्ट से, हर्बल दवाइयों से, ये जो जैसे ये हकीम साहब हैं, अपना इलाज अब भी उन जड़ी बूटियों से करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, पूरी दुनिया से लोग जड़ी बूटियां खरीदने के लिए चाइना आते हैं। अब भी वो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज वो एलोपैथिक से करते हैं, हर्बल से करते हैं। यही वजह है कि वो हमसे तंदुरुस्त हैं, उनकी लंबी जिंदगी है, तवील जिंदगी है। इन जैसे हकीमों ने हमारे मुल्क के अंदर जो एलोपैथी का इलाज जो है वो ज्यादा प्रमोट इन लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर ना तो कोई जिद्दत लेके आए, 2 नंबरी, और एलोपैथी का सहारा लेके ये अपनी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब जमाल साहब, ये केले हमारा कारनामा नहीं है जी, ये बहुत सी चीजों में खराबियां हैं, खाली दवाइयों में या हकीमों में नहीं है। जी जी ये हमारा पीने का पानी देख लो, जी, कहीं साफ है? ठीक है, लेकिन आप अपना काम तो करें। हमारी खुराक देख लो, दुकानों पे जाके घी में मिलावट, दाल में मिलावट, आटे में मिलावट, दूध में मिलावट, दही में मिलावट, फ्रूट हमारे ठीक नहीं है, उनमें भी मिलावट। ठीक है, तो क्या क्या करे हकीम, तो बस ऐसे ही होंगे फिर। इस हद तक आप ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप अपने शोबे को तो ठीक रखें ना यार। वो तो अपनी जगह पे ठीक हैं, वो भी जुराइम है, उनको भी अपने शोबे को बेहतर करना चाहिए। लेकिन यार आप तो देखें ना, ये जो आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये फरिश्तों जैसा काम है। किसी की जिंदगी बचाना ये एक बहुत नेक और मुकद्दस काम है। एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाने के बराबर है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपने इस प्रोफेशन के साथ 2 नंबरी करते हैं, लॉयल्टी का मुजाहरा नहीं करते, ईमानदारी नहीं दिखाते, तो आपकी बड़ी सख्त पकड़ है। लो जी जमाल साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। जी शुक्र कर खुन्ना नहीं खुलिया। आज के बाद मैं जब भी इलाज करूंगा देखभाल के करूंगा। जी, अच्छी बात है। भी कमीशन खो रहे हैं, कफन वाले, कब्रों वाले, गोर का, इनसे मैं अब जान छुड़ा लूंगा कि नहीं। जी। सबसे पहले इंसानियत। जी, इंसानियत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दिल लगा के तेरा इलाज करूंगा और अच्छा इलाज करूंगा बस। सच्ची? हाँ। एदी गल ते यकीन करा, मुंह ते नहीं एदी गल ते। नहीं, आप कर लें, जो आपके नादर खानदानी नुस्खे हैं वो उसका इस्तेमाल करें। ये एक गरीब आदमी है, डॉक्टरों के पास जाएगा, लंबा चौड़ा इसका खर्चा होगा, एक्सपेंस होंगे, टेस्ट करवाएंगे, वो उसे हजारों रुपए बटोर लेंगे। तो आप इसके साथ तावन करें, इसका न्यूट्रिशन इलाज करें गज़ा के साथ। आप जैसे हुक्मा लोग जो हकीम थे, वो माजी के अंदर इलाज बिल गज़ा, यानी कि गज़ा के साथ इलाज करते थे, तो बहुत सारी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती थी। अब तो सारा इलाज ही मेडिसिन से होता है। तो आप जैसे हकीमों ने जब से अपने शोबे में, प्रोफेशन के अंदर 2 नंबरी की, आपने स्टीरॉइड का सहारा लिया, तो उसी वक्त से जो है एलोपैथिक का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रोफेशन के साथ, शोबे के साथ ईमानदारी और लॉयल्टी का मुजाहरा करना चाहिए, और इसका बाकायदा इलाज, इनका इलाज गज़ा के साथ करें। और गिजा के साथ क्या करूँ जी, ये लेके खा ही नहीं सकता गिजा, महंगाई इतनी हो रही है। चलें, आपका किचन जो है ना हकीम साहब, मेरे नॉलेज के मुताबिक आपका एक किचन है ना, किचन के अंदर आपकी सेहत के लिए वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अब न तेरा मैं देसी जड़ी बूटियों से इलाज करूंगा, मेहरबानी। पक्का इलाज करूंगा बस। हाँ, मैनू अपनी रोटी थान ते नहीं देनी पैनी। नहीं रोटी ऐसा इलाज दूंगा, ऐसी फक्की दूंगा जहाँ तू 1 रोटी खाता तो 6 खा जाएगा। अच्छा, फिर तेरी भी मैं खा जाऊंगा। हाँ, मेरा मतलब है
हजम भी जल्दी जल्दी होगी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ बिल्कुल सही ਤੁਹਾਡੀ बात है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वो उससे मेरा कल्ले का फायदा नहीं था। हाँ। 15 जी और मेरे साथ रले पड़े थे, हाँ। लेकिन नहीं, अब उन 15 को भी कह दूंगा कि रिज़्क़ हलाल खाओ, मेरे साथ बेईमानी ना कराओ, इंसानियत की खिदमत करो, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜ਼ਬਰਦस्त। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ हकीम साहब कमाल आपने हो बहुत गया। जो है मैं समझता हूँ कि आपको इन चीज़ों का एहसास हुआ कि आप एक गलत काम करें, आपने इलाज का जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। अगर आप उसको बाकायदा प्रोफेशनली एक अच्छे हकीम की तरह करें तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक आप कौम मुल्क कौम की खिदमत करेंगे और ये एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुकद्दस काम है। आपने हमारे कहने पे जो है अपने प्रोफेशन को बेहतर करने का वादा किया है। मैं समझता हूँ कि हम आपके बहुत मशकूर हैं और इससे ये होगा कि आने वाले दिनों में ये शोबा जो हिकमत का शोबा है, हिकमत के शोबे के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, क्योंकि यही एक सही तरीका इलाज है। माजी के अंदर इंसानों का इलाज ग़ज़ा से किया जाता था, इलाज बिल ग़ज़ा। मैं समझता हूँ अगर हम उसी तरीके पे दोबारा वापस आ जाएं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारी जान छूट सकती है, हम एक सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ਅੱਛਾ ਜੀ डॉक्टरी वाला काम आसान नहीं है, कि तो तेरे टिक्का का छोड़ेंगे, कहीं 70 दवाइयाँ देंगे, हमने तो एक ही गोली देनी है रोज। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ हकीम घसीटे खां इलाज करता हूँ, घसीट घसीट के। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਫਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ उसकी दुकानों ने तरक्की करी है। ਕਫਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕ ਲੱਗ हाँ ਪਏ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਕਬਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ मेरे आने के बाद तकरीबन 300 300 ਕਬਰ ਵੱਧ ਗਈ हाँ हाँ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ 301 ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ वो कैसे? ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ला